Welcome all of you my dear students. In my previous video, I have discussed about that why the demand for Indian indigo, and where we have discussed that the condition of Europe and demand of the Indian indigo in the European market. And we have also seen there that the competition of the indigo to vote, and finally the indigo was chosen by the textile traders, manufacturers of the cloths, and they decided that they had to do their work with the help of indigo. So that's why we have seen that in the Europe, the European traders first they forced their government to ban the Indian indigo import from India, but latterly we have seen that they convince their government कि कुछ थोड़ी ढील दी जाए नील को भारत से यहाँ मंगाने के लिए, क्योंकि why? Because Nile is indigo that was very famous. Indigo, their quality was based in the textile industry, in the cloth manufacturers. के लिए नील काफ़ी उन्नत रंग माना जाता। फिर हमने देखा कि वहाँ पे किस तरीके से यूरोपियंस व्यापारी, यूरोपियन देश अपनी कॉलोनी में इंडिगो की खेती शुरू कर दी है। हमने डिस्कस किया था, बात की थी हम लोगों ने कि फ्रांस ने किस तरीके से इंडिगो अपने कॉलोनी सेंट डोमिंगो में शुरू की। हमने बात की कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने जमैका के क्षेत्रों में शुरू किया, स्पेनिश ने वेनेजुएला में इंडिगो की प्लांटेशन, एग्रीकल्चर लगवाए, प्लांटेशन कराया, लेकिन अभी भी उनकी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी। इट मीन्स दीज आर ऑल नॉट फुलफिल्ड द डिमांड ऑफ इंडिगो फॉर द यूरोपियन मार्केट्स। सो दैट्स वाई दे डिसाइडेड कि हमें अपनी नई कॉलोनी में, नई जगहों पे नील का उत्पादन के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। और 17वीं सेंचुरी के अंत तक आते आते 18वीं सेंचुरी की शुरुआत में बदलाव की चरण दिखाई दी। 18वीं सेंचुरी तक आते आते भारतीय नील की मांग और बढ़ गई और ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था। अगर आप देखें तो by the end of 18th century, the demand for Indian indigo grew further. Britain began to industrialize and its cotton production expanded dramatically, creating an enormous new demand for cloth dyes. हमने देखा कि 18वीं सेंचुरी तक आते आते भारतीय नील की मांग बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण शुरू हो चुका था, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था, कपास का उत्पादन में वृद्धि हुई और कपड़ों की रंगाई की मांग भी तेज़ी से बढ़ गई। और अब नील की मांग बढ़ी। इसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली नील के निर्यात और अमेरिका और वेस्ट इंडीज से यूरोपियन कंट्री को होने वाले निर्यात में रोक लगाई, क्योंकि अमेरिकी क्रांति हो रही थी, विश्व उस समय संकट में था, इसलिए वहाँ से नील पर्याप्त मात्रा में यूरोप नहीं पहुँच पा रहा था।
और इधर नील की कंपटीशन भी बढ़ रही थी, इसलिए अंग्रेज़ों को अब एक नई जगह चाहिए थी जहाँ से वो नील का उत्पादन करें, नील की खेती, जहाँ से वो इन चीज़ों को प्राप्त करें। और इसी छटपटाहट ने, इसी बेचैनी ने उन्हें भारत की तरफ देखने को मजबूर किया। नेक्स्ट टॉपिक आपका यहीं से है, ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। आइए लेट अस स्टार्ट योर टॉपिक। Faced with the rising demand for indigo in Europe, the company in India looked for way to expand the area under into cultivation. From the last decades of the 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly, and Bengal indigo came to dominate the world market. In 1788, only about 30% of the indigo imported into Britain was from India. But by 1810, the production had gone up to 95%. As the indigo trade grew, commercial agents and officials of the company began investing in indigo production. Over the year, many company officials left their jobs to look after their indigo business, attracted by the prospect of high profits. Numerous Scotsmen and Englishmen came to India and became planters. Those who had no money to produce indigo could get loan from the company and the bank that were coming up at the time. In this paragraph, author want to inform you about that the curiosity of Europeans, especially Britishers, that they started to settle themselves in India for the indigo plantation. They took loan from company and started the indigo plantation. Englishmen, Scottish, everyone, they want to be rich to richer as early as possible, and they thought that if we would start indigo plantation, we become soonly a richer person in England. हम इंग्लैंड में बहुत ही समृद्ध लोग बन जाएंगे। ये चीज़ें उनको समझ में आ रही थी, इसलिए उन्होंने सभी ने, सब व्यापारियों ने बड़ी संख्या में यूरोप से भारत की तरफ रुख किया और भारत में प्लांटेशन एग्रीकल्चर इंडिगो पे ध्यान दिया। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। 18th सेंचुरी लास्ट तक, 18th सेंचुरी के अंतिम दशकों में बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी और ये बंगाल अब दुनिया में सबसे अधिक नील उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हो गया। बंगाल में पैदा होने वाला नील विश्व के बाजारों में अपनी पैठ मजबूती से बना ली। 1788 ब्रिटेन के द्वारा जो नील आयात की जाती थी 1788 तक केवल 30% नील मंगाई जाती थी, लेकिन 1810 महज
13 से 14 सालों के बीच 13 to 14 ईयर्स डिमांड 30% से बढ़ के 95% अब वो आपूर्ति कर रही थी, उनकी आवश्यकताएं पूरी कर रही थी। यू कैन एज्यूम, यू कैन इमेजिन कितनी बड़ी मात्रा में भारत में नील की खेती कराई जाने लगी, और ये नील की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत कितना अच्छा स्रोत बना उनके लिए। इसलिए उन्होंने बड़े पैमाने पे भारतीय नील की खेती पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। एज द इंडिगो ट्रेड grew, commercial agent and officials of the company began investing in indigo production. जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में अपना पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ बंगाल के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार से, नील के अपने बिजनेस से अपने नील के बिजनेस पे ध्यान देने के लिए कंपनी के विभिन्न पदों से इस्तीफा दिया, रिजाइन किया, नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद ने स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोगों को भी भारत आने के लिए अट्रैक्ट किया। नील के बागान लगाए गए। इनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं थे, उन्हें कंपनी ने नए बैंकों ने खूब कर्ज दिए। कर्ज देकर इन्होंने भारत में इंडिगो प्लांटेशन में अपने को इन्वॉल्व कर लिया। अगर आप यहाँ से देखें इस पैराग्राफ को, to dominate the world market in 1788, only about 30% of the indigo import into Britain was from India. By 1810, the production had gone up to 95%. It is clear that the indigo demand was very high in Britain. और तेज़ी से डिमांड बढ़ी, तेज़ी से उसकी भारत में उन लोगों ने उस व्यापार पर कंट्रोल भी किया। एंड एज द इंडिगो ट्रेड ग्रू, कमर्शियल एजेंट्स एंड ऑफिसर्स, और भारतीय नील के व्यापार ने भारतीय व्यापारियों को भी आकर्षित किया कि वो सभी बड़ी संख्या में अपना पैसा नील के बिजनेस में लगाना शुरू कर दिए थे। आश्चर्य की बात तो ये थी कि कई सारे व्यापारी, कई सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी, ऑफिशियल्स नौकरी छोड़ के इस व्यापार में लग गए। साथ ही साथ यूरोप में, स्कॉटलैंड में, इंग्लैंड के लोग बहुत जल्दी धनी होने के लिए अपना सब कुछ बेच के इंडिया आके नील की खेती शुरू की। जिनके पास पैसे नहीं थे उन्होंने बड़ी संख्या में बैंकों से कर्ज लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी से लोन लिए और फिर उन्होंने नील की खेती शुरुआत की। हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड? देयर वर टू मेन सिस्टम ऑफ इंडियन इंडिगो कल्टिवेशन. There were two main systems of indigo cultivation, niche and rayati. Within the system of niche cultivation, the planter produced indigo in land that he directly controlled. He either bought the land or rented it from other zamindars and produced indigo by directly employ hired laborers. नील की खेती कैसे की जाती थी? How was indigo cultivated? Author clearly informed you about there were two types. There were two main systems of indigo cultivation.
एक निज और दूसरा रैयती। निज खेती की व्यवस्था में जो निज थी खेती की टाइप्स, ऐसी व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वह ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से ज़मीन किराए पे लेके खेती करते थे और डेली वेजेस भाड़े के मजदूरों से नील की खेती कराते थे। अब यहाँ पे भी समस्या थी। दैट इज़ द प्रॉब्लम, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। लेट अस सी व्हाट इज द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम विथ निज कल्टीवेशन। निज कल्टीवेशन के साथ क्या दिक्कत थी? द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन। Indigo could be cultivated only on fertile lands, and these were all already densely populated. Only small plots scattered over the landscape could be acquired. Planters needed large area in compact blocks to cultivate indigo in plantation. Where could they get such land from? They attempted to live in the land around the indigo factory and evict the peasants from the area, but this always led to conflict and tension. क्लियर कह रहा है, बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल, जो एरिया थी, फैलाने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पे की जा सकती थी, फर्टाइल लैंड पे की जा सकती थी, और ऐसी ज़मीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। आई मीन टू से दैट द फर्टाइल लैंड, ऑन द फर्टाइल लैंड देयर वर ह्यूज अमाउंट dense populated area. That fertile land was dense populated. So that is the main problem. ऐसी जो ज़मीनें थी, पहले उन पे आबादी बहुत ज़्यादा थी, जनसंख्या ज़्यादा थी, वहाँ छोटे छोटे खेत थे और छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी, बड़ा प्लाट चाहिए था। इस तरह ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? तो उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने का प्रयास किया और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। और जब पट्टे पे ज़मीन लेके छोटे छोटे किसानों को वहाँ से हटाना शुरू किया गया, तो ये व्यवस्था, ये चीज़, ये सिस्टम वहाँ के किसानों में असंतोष उत्पन्न हो गया, जो बाद में टकराव, तनाव, स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण बने, डिस्प्यूट का कारण बने। बट दिस ऑलवेज लेड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन। अगर आप इसको यहाँ से देखें तो दे अटेम्प्टेड टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री एंड evict the peasants from the area, but this always led to conflict and tension. ये व्यवस्था, जब किसानों को उन क्षेत्रों को हटाया गया तो व्यवस्था क्या हुई? उनके लिए टकराव की व्यवस्था बनी। उनसे उनके अधिकार उनके ज़मीन छीनी जाने लगी तो किसानों ने विरोध किया और इससे तनाव और विरोध, टकराव होना ही था। Nor was labor easy to mobilize. A large plantation required a vast number of hands to operate, and labor was needed. The priestly, at a time when peasants were usually busy with their rice cultivation. Nor was labor easy to mobilize. मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागानों के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत थी, लेबर थी। बड़े बागान, लार्ज प्लांटेशन के लिए लेबर्स चाहिए थे,
वो भी बड़ी संख्या में। ये लेबर की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त होते थे, लेकिन जब किसान अपनी खेती करता था उसी समय नील की खेती के लिए मजदूर की ज़रूरत पड़ती थी, लेबर की ज़रूरत पड़ती थी। और ये स्थिति इस फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। अतः बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हलों बैलों की भी ज़रूरत पड़ी। हल और बैल चाहिए। निज कल्टीवेशन ऑन ए लार्ज स्केल आल्सो रिक्वायर्ड मेनी प्लाउ एंड ब्लक। 1 बीघा of indigo cultivation required 2 plow. This meant that a planter with 1000 बीघा would needed 2000 plow. Investing on purchase and maintenance of plow was a big problem. Nor could supply be easily got from the peasants, since their plow and bullocks were busy on their rice field. Again, exactly at the time that the indigo planters needed them. बड़े पैमाने पर निज की खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की जरूरत थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए थे। 1 बीघा इंडिगो कल्टीवेशन required 2 plow. And according to this measurement, इस पैमाने के आधार पे अगर देखें तो एक बागान मालिक को 1000 बीघे खेत जोतने के लिए 2000 हल चाहिए। एंड इन्वेस्टिंग परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लाउ वाज ए बिग प्रॉब्लम। और एक बड़ी समस्या थी कितनी बड़ी संख्या में हलों को खरीदना, उनके रखरखाव, जो कि जेन्युइन प्रॉब्लम थी प्लांटर्स के लिए। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपनी ज़मीनों के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी उसी समय किसानों को हल बैल अपने धान की खेती के लिए चाहिए थे। ये बड़ा कंट्रडिक्शन था। प्लांटर को जब हल और बैल की ज़रूरत थी, किसान उसमें उस हल और बैल को अपने खेतों में अपने लिए यूज कर रहा था। इट मीन्स फ्रॉम द peasants, since their plow and bullocks were busy on their rice field, again exactly at the time that the indigo planters needed them. उसी समय उनको भी जरूरत थी। अब ये भी कारण रहा होगा किसानों के शोषण का, उनके ऊपर फोर्सली उनसे नील की खेती कराई गई होगी और उनके चावल की खेती खुद ब खुद नष्ट होती गई होगी। टिल द लेट 19th century, planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation. Less than 25% of the land producing indigo was under this system. The rest was under an alternative mode of cultivation, the rice system. Till the late 19th century, 19वीं सदी के अंत तक आते आते, in the last decades of the 19th century, planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation. 19th century आखिरी दशक, जो प्लांटर्स थे वो निज का क्षेत्रफल फैलाने में बड़ी फोर्सली के साथ, बिना किसी रोक रुकावट के साथ अपने एरिया को बढ़ाए और उसमें वो जरा सा भी हिचकिचाए नहीं। ये व्यवस्था, ये सिस्टम, लेस देन 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वाज अंडर दिस सिस्टम। 25% इस व्यवस्था के तहत, 25% से भी कम जमीन आती थी, बाकी जमीन रहती व्यवस्था के ही अंतर्गत था।
The rest was under the alternatives mode of cultivation, the रईयत सिस्टम। इतना करने के बाद भी इनके पास पर्याप्त जमीन नहीं थी। रईयतों की ज़मीन पर नील की खेती। अब इनके लिए एक समस्या थी ब्रिटिशर्स प्लांटर्स के लिए। इनके लिए कई समस्याएं एक साथ थी, क्योंकि यदि आप ध्यान से देखेंगे तो नील की खेती के लिए हल और मजदूर उसी समय चाहिए थे जब किसान अपने खेती के लिए हल और बैल का उपयोग कर रहे थे। फर्स्ट। सेकेंड, फर्टाइल लैंड पे डेंस पॉपुलेशन था और बिना डेंस पॉपुलेशन को हटाए ये इंडिगो की खेती को बढ़ा नहीं कर सकते, एक्सपेंड नहीं कर सकते थे। थर्ड, खेत का आकार छोटा था। फोर्थ, मजदूरों की संख्या, लेबर की संख्या उनको ज़्यादा चाहिए थी। और इन चीज़ों से निपटने के लिए इट मीन्स I will give you 4 points. On behalf of that, the rise of conflicts will arise between peasants and Britishers. What were the reasons for the conflicts between Europeans and cultivators? First, the fertile land was very dense. That was very fertile, and although it was dense. Second, the area of fertile land was very less. Third, the laborers, the peasants involve himself particular time when the indigo एग्रीकल्चर इंडिगो की खेती के लिए जब ज़रूरत थी किसानों की, उसी समय वो अपने भी खेतों में काम करते थे, इसलिए ये भी एक समस्या थी। इसीलिए तो 19वीं सदी के अंत तक आते आते बड़ी तेज़ी से किसानों की ज़मीनों को कैप्चर कर लिया गया, पोजीशन कर लिया गया और नील की खेती का विस्तार किया गया। लेकिन फिर भी जितना विस्तार किया गया वो केवल 25% था खेती का। अभी भी कि 75% रैयतों के पास थी खेती की। और ये कारण था कि अब वो रैयतों की ज़मीन पे कब्जा करना चाहते थे इस एग्रीकल्चर के लिए। आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रईयस। इस टॉपिक को अगर ध्यान से देखें, इन चीज़ों को ध्यान से समझें, तो आपको कॉन्फ्लिक्ट समझ में आने शुरू हुए। किसानों के बीच, रैयतों के बीच, रैयतों की और ब्रिटिशर्स के बीच, प्लांटर्स और डेली वेजेस वर्कर्स के बीच क्या प्रॉब्लम बनी हुई है। इन चीज़ों को सोचिए। एक वर्ड आया है बीघा, डेफिनेशन इज गिवन हियर। बीघा, a unit of measurement of land before British rule. The size of this area varied in Bengal. The British standardized to about 1/3 of an acre. बीघा की परिभाषा दिया है। जमीन का एक माप बीघा। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसके क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया। इट मीन्स नाउ दैट टाइम इट वाज आल्सो सस्टेन। उस समय भारत में भी स्थित है 80 डेसिमल का 1 बीघा, 1 एकड़ से थोड़ा कम बीघा के पैरामीटर को सेट कर दिया गया लैंड जमीन का। इससे ज़मीन नापने में यूज किया जाता है। आपको डेफिनेशन याद कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम आपके साथ। इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रैयत से बात करेंगे हम प्रॉब्लम पीजेंट्स की, बात करेंगे कैसे एक्सप्लॉयटेशन पड़ रही थी बंगाल में। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर एंड एडियो।